एक रोबोटिक हर्निया वी हैव टू टेक। डॉक्टर साकेत कल नाइट ड्यूटी पे थे, मॉर्निंग में पेशेंट उन्होंने बेबी शिफ्ट करा लिया है एंड आई एम स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू द OT-17 विच इज अ रोबोटिक OT एंड एट द सेम टाइम OPD भी चलती रहेगी, सो द टीम मेंबर्स कैन जस्ट शटल बिटवीन द टू। सो उसके बाद फिर एक बायलैटरल इंग्वाइनल हर्निया है लैप्रोस्कोपिक, फिर एक लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी हम लोग करेंगे। उसके बाद एक लेजर हिमरॉइड्स का पेशेंट है एंड उसके बाद आई थिंक देयर इज वन मोर पेशेंट। सो आई थिंक इन ऑल वी हैव अराउंड 6 to 7 cases today and we have to manage the OPD as well. Saturday is usually काफी बिजी डे होता है, तो चलते हैं without wasting any time. Let's go. और ब्रेकफास्ट भी मेरे साथ ही है ये। Okay, so here we are. This is the main entrance of Artemis Hospital. That's a parking areas. Morning. Let's go to the OPD first. So room number 1031 is my OPD. So we have treated patients from all these countries. आप सारी कंट्री अगर आइडेंटिफाई करके मुझे बता सकते हो तो आई गिव यू समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड दिस इज द बेसिकली रोबोटिक प्लेटफॉर्म एंड वी आर डूइंग ऑल दीज सर्जरीज। अगर आपको कोई क्वेरी है तो फिर आप यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। एंड दीज आर द पीपल, Dr. Ankur, myself, Dr. Aditi and Dr. Saket, and the Da Vinci system which is behind us. All our patients, now they are a family. Okay. And so this is Dr. Aditi. Dr. Aditi is our laser and robotic surgeon. Say hi. 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 Sis. Hi. Good morning to Chalo, everyone. great. Yes, sir. Then only you can look for an enhancement of the whole spleen. In this portion, where there is ischemia, there is no supply. So there will be non-enhancement of that part of the spleen. Right? So management can be conservative, or we have to do a partial splenectomy in the case of Splenic functions. Conservative means you may have to put on antibiotics. You may have to treat pains symptomatically. You may treat problems. So this is Dr. Ankur, our fellow, and जैसा कि मैं बता रहा था, this is Saket, DMB second year. Yes. Good, great. और अदिति का है? डॉक्टर अदिति इज ऑन द वे। कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम था उनका शायद से, चलो इट्स ओके। सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ऑल द पेशेंट्स एंड अब हम क्विक राउंड लेकर आते हैं एंड उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। Record or not? हाँ, Hi, I'm Dr. Aditi. I'm a consultant robotic and laser surgeon at Artemis Hospital, Gurgaon. So if any ये बोलना female एक बार अभी सर रुको नहीं वो तो एडिट हो जाएगा। देख ये अपने साथ होता है। ये सारा एडिट हो जाएगा। एक मिनट रुको सर। So hi guys, this is Dr. Shreya. I was telling you about in the morning. So Dr. Shreya
has joined us as a first year DNB General Surgery from Kolkata. And Dr. Shreya, welcome to the team. And would you like to tell something about yourself? Okay, I am Dr. Shreya Chatterjee, as sir has introduced myself. I am from Kolkata. I am here to pursue my DNB degree in general surgery. Been very fortunate to be training under such an eminent personality in the field of robotic surgery. Hoping to see more cases and slowly widen my horizon into this field and the latest advancement that comes along. Okay, thank you, Dr. Shreya. And now I think you are busy with something? Yes, sir. I am yet to put in a few discharges and look at a few patients. And you got hurt yesterday. You what happened? Yes, unfortunately I tripped down the stairs. Mhm. My ankle is a little sore, but And hoping. you are still coming at work? Yes. So that's Shreya for you. Morning, friends. So 16th December and आज अभी मैं सीधा ओटी जा रहा हूँ एक फिस्टुला इन एनो को ऑपरेट करने के लिए. सो डॉक्टर साकेत हैज जस्ट गिवन मी द कॉल. डॉक्टर साकेत हैज कॉल्ड, द टीम इज देयर एंड द एनेस्थीसिया विच इज यूजुअली गिवन फिस्टुला इन एनो में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो आइडियली स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है. लेकिन कुछ लोगों को स्पाइनल एनेस्थीसिया से अगर प्रॉब्लम हो तो दे कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट अ जनरल एनेस्थीसिया, बट प्रेफरेबली स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही जो प्रोक्टोलॉजिकल सर्जरीज हैं वो होनी चाहिए अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड. तो बेसिकली फिस्टुला इन एनो के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हुए हैं. इट इज़ अ वेरी स्टबर्न प्रॉब्लम, किसी को भी हो सकता है. स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड एनल ग्लैंड या एनल क्रिप्ट एब्सिस, जो कि बढ़ती हुई या तो एब्सिस बना लेती है जो सीवियर पेन देती है, फीवर दे सकती है, स्वेलिंग बल्ज होने लगता है और कभी कभार ये रप्चर हो जाती है. जैसे रप्चर होगा तो सारा जो पस है वो बाहर निकल जाएगा और हो सकता है कि आपको आराम पड़ जाए. उसके बाद हो सकता है कि इसकी हीलिंग हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पस डेवलप होगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर रप्चर होगा. तो ये साइकिल बढ़ती रहेगी. और इसके अलावा जो फिस्टुला है वो भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड या हॉर्स शू बन सकता है, जिसकी कि ट्रीटमेंट स्टेजेस में होगा, रिकरेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. दूसरा ये है कि हर फिस्टुला लेज़र से नहीं किया जाता. ये एक बहुत बड़ा मिथ है. जो लो फिस्टुलाज हैं अगर वो निकल सकते हैं बिना जो वॉल्व या स्फिंक्टर्स को डैमेज करे तो वो प्रेफरेबल है. और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये जो फिस्टुला का ट्रैक है वो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू जा रहा है तो उस केस में फिर लेज़र का काफ़ी अच्छा रोल है. और कभी कभार सेटॉन या जिसे हिंदी में शारसूत्रा कहते हैं उसको डाल दिया जाता है और कुछ स्टेजेस के में ये जो प्रोसीजर है वो किया जाता है. तो जो ताकि सेफ्टी है, कॉन्टिनेंट मैकेनिज्म है जो स्टूल को होल्ड करने का, उसमें इंजरी ना हो. और जैसे मेरे पास ये एक छोटा सा मैं आपको अगर डिमॉन्स्ट्रेट करूं, आई थिंक यू कैन सी दैट. तो इसमें ये देखिए आपकी यहाँ पे एनल क्रिप्ट अंदर ये एब्सिस डेवलप हुआ. उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे कि ये पूरा एक एब्सिस जैसा बन गया और तीसरे ये आप देखिए ये पूरा रप्चर होकर बाहर आ गया. तो ये जो पूरा ट्रैक है इसको बाहर निकालना है और अगर ये ट्रैक लंबा है तो फिर लेज़र फाइबर के थ्रू इसको कर सकते हैं. कई लोग मेरे पास आते हैं लो फिस्टुला में लेज़र का जो ऑप्शन लेके. आई डोंट थिंक कि दैट इज़ indicated that is right. We should not sell a procedure. We should not sell laser. We should offer the treatment of the condition. और अगर पेशेंट डिमांड कर रहा है लेज़र की जो अनजस्टिफाइड है तो एज ए डॉक्टर ये हमारा काम है कि हम उसे समझाएं कि भाई अननेसेसरी इस वर्ड पे मत जाइए. ये कुछ समय पहले से ही इसलिए फेमस हुआ है कि इसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ही गलत तरीके से हुई है, गलत लोगों के द्वारा हुई है. सो लेज़र विल हेल्प इन सर्टेन फिस्टुलास बट नॉट ऑल. फिस्टुला की जो सर्जरी के बाद फिर जो छोटा सा वुंड वहाँ रह जाता है उसकी ड्रेसिंग्स रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, क्लीनिंग, ड्रेसिंग्स. तो मैं बताऊंगा आपको अगर कोई पेशेंट अभी ओपीडी में आएगा तो होपफुली वी कैन डेमॉन्स्ट्रेट. आई विल आस्क डॉक्टर आदित्य मे बी और डॉक्टर अंकुर और डॉक्टर साकेत
सो चलते हैं ओटी। ओके, सो अभी बज रहे हैं 4:30 और आई बीन शटलिंग बिटवीन ओटी एंड ओपीडी। इवनिंग्स के टाइम पे हमारी जो कल की जो ऑपरेटिव लिस्ट रहेगी उसको फाइनलाइज करता है नितिन, जो ये काम करता है। एक हम डिस्कशन करते हैं, देन वी कैन जस्ट फाइनलाइज द लिस्ट एंड वी डू दैट। पेशेंट्स के कॉल आते रहते हैं वार्ड में या इमरजेंसी में, तो उसको भी बीच बीच में जाके हम लोग अटेंड करते रहते हैं। तो आई गेस के बाद में कुछ ज़रूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो ईमेल्स वगैरह चेक करना या कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप करना, या देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच नीड्स अटेंशन ऑन अ डेली बेसिस। सो वी ऑल्सो गेट लॉट्स ऑफ क्वेरीज फ्रॉम इंटरनेशनल पेशेंट्स, तो उनका भी जवाब देना काफ़ी टाइम ले लेता है। So all in all, I love being in Artemis, and I'm thankful to God and all of you who trust. I guess आज के लिए इतना बहुत रहेगा। I will try to come frequently. देखते हैं how it goes. So अपना ध्यान रखिएगा, and always remember that health is the real wealth. Okay, guys, so the day continues. अब शाम के 4:30 बज रहे हैं और अब ये टाइम है सर्जिकल लिस्ट कंप्लीट करने का। तो बीच में आई एम शटलिंग फ्रॉम द ओटी टू ओपीडी। द टीम इज़ देयर एंड इवनिंग्स में पेशेंट्स एक बार पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को देखकर और हम फिर ये प्लान करते हैं कि कल की जो ओटी लिस्ट है वो कैसी रहेगी। तो जो प्री ऑपरेटिव वर्कअप है या जो एडमिशन की जो रिक्वेस्ट वगैरह होती है वो सारा काम इवनिंग में होता है। कल मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक ऑफ लूजिंग वेट विच इज़ अ नॉन सर्जिकल टेक्निक, उसके बारे में बताऊँ। खोलो बेट पाला है एकदम में सर। नमस्कार, जल्दी नमस्कार। थोड़ा काम Okay, so this is the library of our hospital, where you can get access to all the journals, both online, offline. Online भी है ना हमारे पास? व्यू तो बड़ा अच्छा है। बहुत लोग
So we are going to the radiology suite to see the radiological investigations of our patients. अब बताओ उसका सर डीएससी हो रहा है अभी, ठीक है। और उसको सर इंटरनेशनल वाले को देख लो सर एक बार। हाँ जी सर, ये सर रिमूव फोर में है। अरुण अंदर ही रहो यार, 1 मिनट देख। हाँ अंदर ही। मैं रिवर्स वाला देख रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 12:50 और देयर इज एन इमरजेंसी इन द हॉस्पिटल। So Dr. Saket is there with Dr. Ankur. They have just shifted the patient in the OT, and I'm leaving. फ्रेंड रात का 1 बज रहा है और
मुझे अभी 2 घंटे पहले डॉक्टर साकेत का फ़ोन आया था कि देयर इज़ एन इमरजेंसी। तो बेसिकली पेशेंट्स 2 तरीके से ऑपरेट होते हैं। एक तो इलेक्टिव, जो हम लोग प्लान करके, इन्वेस्टिगेट करा के, वर्कअप करके, ऑप्टिमाइज करके उनको सर्जरी के लिए लेते हैं। फॉर एग्जांपल हर्निया हो गया या एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स हो गए। वैसे ही जो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं, दैट इज यू हैव टू टेक देम डिपेंडिंग ऑन द इमरजेंसी। अगर किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल गन शॉट है या स्टैब है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ब्लीडिंग हो रही है या लंग्स में प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट्स को हमें बहुत ही जल्दी ऑपरेट करना पड़ता है। जो ट्रॉमा में तो जो ट्रॉमा में बेसिकली हम लोग कहते हैं ABC, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, अगर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देके और तुरंत पेशेंट को OT में शिफ्ट कराया जाता है सो एज टू फ्रेंड्स रात का 1 बज रहा है और देयर इज़ एन इमरजेंसी। इसके लिए डॉक्टर साकेत ने पेशेंट को ऑलरेडी OT में शिफ्ट करा लिया है और अब हम जाके ऑपरेट करते हैं। currently doing FNP minimal exercise in Artemis Gurgaon, and we are starting a robotic procedure, that is robotic intraperitoneal on-limb repair.
तो फ्रेंड्स शाम के 6:30 और हम 4 सर्जरीज कर चुके हैं. रोबोटिक हर्निया वेंट वेरी स्मूथ. इसके अलावा वी डिड बायलैटरल इंग्वाइनल हर्निया लैप्रोस्कोपिक एंड वन तो फ्रेंड्स शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम वी हैव ऑपरेटेड 4 पेशेंट्स टिल नाउ. बीच बीच में सैटरडे इज़ अ वेरी हैवी डे फॉर ऑल ऑफ अस, सो द डे इज़ क्वाइट हेक्टिक. अनदर 2-3 सर्जरीज आर देयर. साकेत एंड डॉक्टर अंकुर एंड डॉक्टर साकेत ओटी में पेशेंट ले रहे हैं और आई एम जस्ट अबाउट टू ज्वाइन देम. This is our OT complex. Basically we have got 2 separate units of OT and there are total 17 OTs. 17th OT is a robotic OT. मैं धक्का तो कर पा रहा हूँ. नहीं जा रहा. नहीं. उसमें बैग रख देता हूँ बाबू अंदर. वो है डीएल में ना. इसी में लिया. Okay, so final docking has been complete now, and let's take over the control over the console. Okay, so I'm just heading to the robotic OT. The team has just docked the robot and they are waiting for me. So off. सॉरी यार, मीटिंग चल रही थी. क्या किया तुम लोगों ने?